میری عزیزوں، ہم نے تلاوت کی ہے کلام اقدس میں سے لوکا کی انجیل کا 19 باب، اس کی 41 آیت سے 48 آیت مقدسہ میں۔ تو یسوع مسیح اس بزرگ شہر میں آتے ہیں تو روتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب وہ نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ سیزن جو چل رہا ہے میرے عزیزوں، وہ ایک روایت ہے ہماری مسیحی علماء اکرام نے، جسے ایجاد کیا یہ سن 998، 40 روزوں کا، گڈ فرائیڈے کا، راکھ کے بدھ کا، اور اس طرح دیگر اور روایات ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ روایات ہمارے پاکستانی لوگوں نے، میں بھی انڈین اور بھی جو ایشین کنٹری ہیں انہوں نے بھی ایجاد کی ہو، بلیک سوٹ پہننا گڈ فرائیڈے پہ اور اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں۔ لیکن خداوند نے میرے دل پہ اس بات کو رکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں۔ میں بھی اس پہ میں نے پہلے بھی پیغام سنایا ہو، لیکن میں خداوند کی مرضی کو ہمیشہ آگے رکھتا ہوں۔ خداوند یسوع کے نام کو جلال ملے۔ میرے عزیزو، مسیحیت کے اندر بہت زیادہ بگاڑ اس وجہ سے ہے کہ لوگ سن کے آگے اسے سنا رہے ہوتے ہیں، تحقیق و تفتیش کر کے نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بلاہٹ، جب خدا اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو چنتا ہے تو وہ تصدیق کرواتا ہے اپنے لوگوں کی۔ خداوند ان کی زندگی میں معجزات کو رکھتا ہے، خداوند ان کی زندگی میں ایک گواہی رکھتا ہے، جس گواہی کے وسیلہ سے وہ لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب فیصلے پنچایتوں کی طرح ہونے شروع ہو جائیں، جب فیصلے قاضی کرنے لگیں دین کے، تو وہاں پر کام بڑا خلاف ہو جاتا ہے میرے عزیزو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم نے شاید پچھلی دفعہ اس بات کو سیکھا تھا، وعظ 3 باب میں سے۔ جب قاضیوں کا دور تھا تو خدا قاضیوں سے فیصلے کرواتا تھا۔ نبیوں کا دور تھا تو خدا نبیوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں تک اپنے پیغامات پہنچاتا تھا۔ خدا خود بھی آیا مختلف ظہور لے کر۔ بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ خداوند نے جانوروں سے بھی کام لیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب جب ہم اپنے موجودہ وقت کو دیکھتے ہیں، یا آج سے 2000 سال پہلے جب دیکھیں، جن نبیوں نے یسوع مسیح کی شہادت دی تھی، اس کے متعلق پیشن گوئیاں کی تھیں، اس کے متعلق بتایا سکھایا تھا، وہ دنیا میں آ جاتے ہیں ایک انسانی روپ لے کے۔ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قاصر ہیں۔ بہت سارے لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ میرے عزیزو وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ انہیں جو جس طرح لگا دیتا ہے وہ اس طرح لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں،
یہ بڑا ایڈوانس دور ہے. شاید ان پرانے وقتوں کا کوئی شخص آج ہمارے درمیان ہوتا تو وہ شاید پاگل ہو جاتا کہ یہ کیا معاملات ہیں. میرے عزیزو، ان کے مطابق یہ بہت ایڈوانس دور ہے، ہر چیز بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اگر وہ بازاروں میں جاتا، عورتوں کے حلیے دیکھتا تو وہ ایکسیپٹ نہ کر پاتا. وہ بچوں کی لینگویج سنتا، وہ ان معاملات کو دیکھتا تو وہ ان چیزوں کو بہت مشکل سے ایکسیپٹ کرتا. کیونکہ ہم جو پیچھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سادگی بہت عروج پر تھی، سادگی تھی. اچھائی برائی تو شروع سے ہے، غلط درست تو شروع سے چلتا ہے. لیکن میرے عزیزو، لیکن خدا کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھتے سکھاتے ہیں، اچھائی برائی کی وہ تصدیق کرتے ہیں. خداوند نے انسان کی زندگی میں یہ اختیار رکھا ہے کہ وہ غلط درست میں سے ایک راستے کو چن لے. یہاں پر میرے عزیزو، خداوند ہے، یہ 19واں باب ہے. اس سے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری خداوند نے معجزات کیے، بہت ساری تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، بہت ساری باتیں کی. لیکن لوگ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ آج روح القدس کا زمانہ ہے، روح القدس کا دور ہے. خدا نے اپنے نبی بھیجے، اپنے خادمین بھیجے، استاد بھیجے. اس وقت کو کلیسیا کو خدا نے یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں. میرے عزیزو، نبی، رسول، چرواہے، استاد، مبشر، یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ شاید جو چرواہے ہیں انہیں ان باتوں کا علم نہ ہو، اپنی خدمت کو انہوں نے نہ پرکھا ہو. مبشر ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے مبشر اور مبشر میں فرق کیا ہوتا ہے. مبشر جو ہوتا ہے نا، وہ پیغام دینے والا ہوتا ہے، اور پیغام رساں کو مبشر کہتے ہیں. اور اس طرح سے ٹیچر صرف 4 آیات آ جانے سے بندہ استاد نہیں بن جاتا، لیکن ہم اپنے آپ کو استاد کہلوانا پسند کرتے ہیں. اور اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزو جن کو ہم گہرائی سے دیکھیں تو میں بھی ہمیں دکھ ہو. جیسے یسوع مسیح رویا، ہم بھی روئیں. ان چیزوں کو دیکھیں، وہ اس شہر پر رو رہا ہے، آج ہم اپنے لوگوں پر روئیں. متی 23 باب کے اندر وہ افسوس کر رہا ہے فقیر فریسیوں پر. آج ہوتا تو وہ مسیحیوں پر افسوس کرتا. اگر ہم جانتے ہیں ان باتوں کو تو ہم بھی ان پر افسوس کریں کہ یہ کیسی سچائی ہے، یہ کیسے ہماری زندگی میں رنگ گھول دیے گئے ہیں جن سے ہم باہر ہی نہیں نکل پا رہے. یہ کیسا شکنجہ ڈالا گیا ہمیں، یہ کیسی جاڑیوں کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں. بات صرف کہنے سے تو نہیں بنتی کہ ہم زرخیز زمین کا پھل ہیں. بھئی زرخیز زمین والی اپنے پھل بھی تو دکھاؤ. مجبوریاں ہماری جھاڑیوں والی، دبوچہ ہمیں جھاڑیوں ہیں. میرے عزیزو، ان سب باتوں کو دیکھنے کے لیے، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں مختلف کتابوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی میں روح القدس کو لینے کی ضرورت ہے. روح القدس جب آپ کی زندگی میں آئے گا تو یہ سادہ فہم باتیں جو کلام اقدس میں خداوند نے درج کروائی ہیں اپنے رسولوں، اپنے نبیوں، اپنے بندوں کے وسیلہ سے، ہمیں سمجھ آ جائے گی. وہ ہمیں پتہ چل جائے گا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، یہ جو دنیاوی روایات ہیں، دیکھیں جب ہم اپنا جسم درست نہیں کر سکتے، اپنی سوچ درست نہیں کر سکتے، اپنا بدن درست نہیں کر سکتے، تو میرے عزیزو ہم کیسے اپنی روح کی درستگی کے دعوے کر سکتے ہیں؟
मेरा बदन तो गलत साइड पर गलत काम करे और मैं कहूं कि मेरी रूह पाक है, मेरे जीजो ये तो सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बातें हैं। जब अब कलाम की ऐनक लगा लेंगे तो आपको सब कुछ वाजिया नजर आएगा, शफाफ नजर आएगा, साफ नजर आएगा। सो मेरे तो इसलिए ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आज हमारे शहर पर आए, हमारे घर आए, हमारे चर्च आए, हमें देखे और वो हम पर भी रोए और कहे काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। मेरे जीजो अभी हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, फजल का दरवाजा बंद होने वाला है, हैकल तैयार होने वाली है और वो हैकल में आने वाला है, वो अपने लोगों के पास आने वाला है और वो अपने कॉल के मुताबिक जैसे मरियम के पेट में आया, वो अपने कॉल के मुताबिक उसने शमौन को निजात दिखाई, वो अपने कॉल के मुताबिक 30 सिक्कों में बेचा गया, वो अपने कॉल के मुताबिक सलीब पर चढ़ गया और वो अपने कॉल के मुताबिक जी उठा। कलाम में लिखा है वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। ये सब उसके कॉल हैं मेरे जीजो। वो अपने कॉल के मुताबिक अपनी दुल्हन को ले जाएगा, उन मुकद्दसीनों को ले जाएगा और अपने कॉल के मुताबिक जो बाकी बच जाएंगे मुसीबतों को दिखाएगा उन्हें। सो इसलिए हर उस दुख वबा से बचने के लिए मेरे जीजो हमें कलाम में आना पड़ेगा। कलाम में आने के लिए एक मियार है, उस मियार पे जब तक आप नहीं आएंगे मेरे जीजो हमारी जिंदगी में अजीब काम नहीं हो सकते, हमारी जिंदगी में मौजूदात नहीं हो सकते, हमें कलाम की समझ नहीं आ सकती, हम अपने खुदा को नहीं पहचान सकते। देखें दुनिया के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं। शादी एक ईमानदार भी करता है, शादी एक गैर ईमानदार भी करता है, दोनों के बच्चों की शादियां हो जाती हैं। लेकिन जब कोई तजिया करने वाला देखता है तो वो उनमें फर्क खुद ही ढूंढ लेता है, निकाल लेता है। पार्क में अच्छे लोग भी जाते हैं, पार्क में बुरे लोग भी जाते हैं। तजिया करने वाले पहचान लेते हैं अच्छे कौन है और बुरे कौन है। स्कूल में लायक भी होते हैं, नालायक भी होते हैं। हर जगह मेरे अजीजों अच्छा बुरा चलता आ रहा है। फसल में बीज अच्छा भी है और बुरा भी है, मत्ती 13 बाब में इसका तज़किरा है। सो मेरे अजीजों हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करनी होगी। सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। काम तो मुश्किल है, दुनिया की रंगीनी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन मेरे अजीजों नामुमकिन नहीं है। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो खुदावंद मेरा आपको थाम लेगा, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो मैं आपकी तवज्जो यहां पर लाना चाहता हूं, चंद बातें करूंगा कि देखें कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घेरा तंग हो जाए और दुश्मन दुश्मन हमें घेर ले, और ये अनकरीब दुश्मन घेरेगा। जिनकी बात यहां पर हो रही है इनको दुश्मन ने घेरा, सन 70 में मारा, तह तह किया हैकल को, यरूशलेम को, जिस हवाले को हमने पढ़ा है, और फिर अभी इनके लिए दरवाजा भी खुल रहा है। लेकिन मेरे अजीजों हमारे पास और कोई दरवाजा नहीं है इस फजल के दरवाजे के बाद। आप मत सोचें कि फजल से आप महरूम हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आगे एक और दरवाजा है उससे हम इंटर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगियों पर, अपने हालात पर गौर कीजिए, रहम कीजिए। थोड़ी सी मैं जानता हूँ इस बात को, थोड़ी सी डिस्टर्बन होती है इंसान को ट्रैक पर आने के लिए। जब आप कलाम के ट्रैक पर आएंगे तो डिस्टर्बन तो होगी। बच्चा स्कूल दाखिल करवाया जाए जो डेली कभी 4 बजे 5 बजे या 6 बजे नहीं उठा, उसे उठाएंगे तो डिस्टर्ब तो वो होगा। लेकिन एक रूटीन होती है, आपको उठाना नहीं पड़ता, बच्चा खुद उठकर बैठ जाता है।
मुश्किल तो होती है ऐसे हमें भी, मैं कभी दौड़ा नहीं हूँ, रोज दौड़ूंगा, सांस तो फूलेंगी, टांगे तो दर्द होंगी, जिस्म तो टूटेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं मजबूत हो जाऊंगा। और जब आप मजबूत होते हैं तो फिर आप दूसरों को भी सिखाते हैं, एक्सरसाइज अच्छी है बदन के लिए, दौड़ना रनिंग करना अच्छा है बदन के लिए। इसी तरह जब आप कलाम में मजबूत हो जाएंगे, एवरीडे आप खुराक खाएंगे, एवरीडे अपने खुदावंद से बात करेंगे, इस पर अमल करेंगे। अब बात करने से तो नहीं होती कि मैं रोज दौड़ूंगा, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। इस तरह तो आप कभी हेल्थी नहीं हो सकते सिर्फ रोज कहने से, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ईमानदार आप तक नहीं बन सकते जब तक आप इस कलाम को नोश नहीं करते, इसे अपनी ज़िंदगी में लेके अमल नहीं करते। इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे अजीज़ों वाकई में डाकों की खो बन चुकी है हमारा दीन। ये दीन बहुत प्यारा है, मसीहत बाखुदा बहुत प्यारी है, लेकिन इसके ठेकेदारों ने इसमें नाकस मटीरियल डाल डाल के इमारत को खोखला कर दिया है। इसकी बुनियाद ही गलत डाली गई, जो तंजीमों ने डाली, जो खुदावन ने डाली, वो तो बड़ी मजबूत बुनियाद है, वो तो चट्टान के ऊपर है। उन्होंने उस चट्टान से उनकी तवज्जो ही हटा दी। मेरे अजीजों वापस हमारी तवज्जो जानी चाहिए। जिस यरूशलेम पर वो रो रहा है, उस यरूशलेम से कलाम सादर होने के दावे वादे भी कर रहा है, और ये हमारे वक्त का कलाम है। मेरे अजीजों, लोग इस बात को तो सोचते ही नहीं है, जिन रस्मों में वो फंसे हुए हैं। अब रात को मैं चर्च में बात कर रहा था, यूट्यूब पे मैंने बात की हुई है, तकरीबन 1 घंटे तक की होगी, कि आप देख लें यहाँ पर मत्ती की अंजील 4 बाब के अंदर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। वो 40 दिन का फाका कर रहे हैं, ठीक है, बैप्टिज्म लेके 40 दिन के फाके के लिए वो पहाड़ पर जा रहे हैं। और फिर उसके देर बाद 5वें बाब में मुबारकबादियां हैं। उसके बाद ये सारी तालीमात है, 5वां 6वां 7वां बाब, इसमें खुदावन ने तालीमात दी हैं। और फिर खुदावन के मौजूदात हैं, बहुत सारी बातें हैं, तालीम है शागिर्दों के लिए। इन सारी चीज़ों को भूल के, इन सारी चीज़ों को बीच में से निकाल के, इन सारे चैप्टर को बीच में से निकाल के हम फौरन पहुंच जाते हैं 27-28 चैप्टर पर। हमारे दीन की ये हालत है, 40 रोजे रखे विदाउट संडे, और फिर उसके बाद गुड फ्राइडे मनाया। हम 27 बाब पर चले गए मत्ती की अंजील, और फिर 28वें बाब पर रेजरेक्शन डे हमने मनाया, ईद क़यामत अल मसीह मना के बस कपड़े झाड़े और बस ठीक है। मेरे अजीजों, अपनी खुशियां चेक करें, ये जो आरजी खुशियां लेकर बैठे हुए हैं। एक दिन की खुशी मनाई, चंद दिन की खुशी मनाई, फिर कर्जे उतारे, फिर दुख सहे, फिर मुसीबतों में फिर कलाम का सहारा लेना शुरू कर दिया, कलाम को आगे रख दिया। जी यीशु मसीह की खातर लान तान हो रहे हैं, भाई ऐसे थोड़ी यीशु मसीह की खातर। कलाम का आपको अलिफ बे भी नहीं पता, एबीसी भी इलम नहीं है, और आप कलाम के लिए जलील हो रहे हैं। कलाम के लिए जलील तो वो होते हैं जिनकी जिंदगी में कलाम होता है। हम शरारत करके मुक्के खाएं तब भी हम कहते हैं यीशु की खातर हमें ऐसा कहा गया। बच्चों पे हम तो जो नहीं देते, और बच्चे फिर बड़े होके अजीब अजीब हरकतें करते हैं, उनके काम हम उन्हें गलत, उन्हें छोटे मोटे काम पे हम उन्हें नौकरी लगवा देते हैं, और फिर हम कहते हैं जी हमारे लोगों को ऐसे नहीं करने देता। काबिल तो बनाए, ऊपर जो बैठा हुआ है आसमान पर वो तो कभी ज्यादती नहीं होने देता। आप तो बादशाहों के बादशाह के बेटे हैं, आप तो शहजादे हैं, शहजादे ऐसे थोड़ी होते हैं। और वो नालायक शहजादे होते हैं जिन्हें सल्तनत नहीं मिलती, लाइक को मिलती है। मेरे चीजों, इसलिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और हर उस रवायत को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। मैं भी थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो नहीं मनाते वो भी जिंदा हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना मनाएं, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप अपने इस चीज़ को देखे भी, इस हदिये को अपनी देखे भी, जैसे कायन और आबिल हैं, मजहबी हैं, दोनों दोनों खुदावन की हजूरी में गए, दोनों ने खुदावन के सामने अपनी ऑफरिंग रखी है, लेकिन किसकी मकबूल हुई? आज अपने देखें, अपने हदिये को किस नीयत से लेके जा रहे हैं आप अपने बच्चों को चर्च में, अपने बदन को, अपने आप को किस नीयत से लेकर जा रहे हैं? कि बरकत पाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो बरकत पाकर भी वापस आए हैं। बरकत पाने के लिए जा रहा हूँ और बेहुदा लिबास है, क्या बरकत पाऊंगा? बरकत पाने के लिए लेके जा रहा हूँ तो
मेकअप किया हुआ है, इजबल ने मेकअप किया बाइबल मुकद्दस के अंदर, और उसका हाल भी देखें आप क्या हो रहा है। बरकत पाने के लिए जा रहा हूं, दिल में झूठ है। बरकत पाने के लिए जा रहा हूं, दिल में भाई के लिए हसद है। बरकत पाने के लिए जा रहा हूं, ज़हन वही गंदे का गंदा है। बरकत पाने के लिए जा रहा हूं, आंखों में जो है ना वो गुनाह है। बरकत पाने के लिए जा रहा हूं, ख्वाहिश बुरी है। बरकत पाने के लिए जा रहा हूं, ईमान दुरुस्त नहीं हुआ। मेरे अजीजों, ये दुख की बात है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। ये सब कुछ इसीलिए तो इन रवायात से हम बाहर नहीं निकल पाते। ईमान कमजोर है। ईमान दुरुस्त होगा तो क्या, नबियों ने अपने खानदान तक नहीं छोड़ दिए। रवायात तो बड़ी दूर की बात है। रवायात छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन नबियों को देखें, रसूलों को देखें, अपने घर तक छोड़ दी। यीशु मसीह को देखें जो हमारा रोल मॉडल है। उसने कहा लुंगड़ियों के बाट होते हैं, इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। कौन है मेरी माँ, कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहनें? वही जो मेरे बाप का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, कलाम पर खड़े हो जाएं, आपको बहन भाई मिलेंगे, आपको राहत मिलेगी, सच्ची खुशी तसल्ली मिलेगी। ये टेंशनों से जान छूट जाएगी। जितने मर्जी पैसे कमा लें, जो कुछ मर्जी आपकी जिंदगी में हो, लेकिन टेंशन है तो क्या फायदा है। आपको नींद नहीं आती, नींद आने के लिए आपको गोलियां लेनी पड़ती हैं। क्या फायदा उस पैसे का जो आपको हकीकी जो है वो नहीं दे सकता एक तसल्ली, और एक आपको चैन की नींद नहीं दे सकता। उस पैसे का क्या फायदा जो आपको आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं करवा सकता। इसलिए अमीर होना गुनाह नहीं है, आपके पास पैसे हैं गुनाह नहीं है, पैसे से प्यार करना गुनाह है। इसलिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें और हम हर उस रस्म से अपने आप को अलग कर लें। अब वक्त ज़्यादा हो चला है, खुदावन ने चाहा तो फिर कभी मैं आपको एक मिसाल सुनाऊंगा। जो एक शहजादा बड़ा लायक होता है, जिसका बाप जो है ना वो उसे मनसब पर बिठाता है, उसकी लायकी की वजह से कि वो लायक होता है। सो ज़रूर हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी वक्त काफ़ी हो चुका है। तो खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपनी छोटी सी खुशी के लिए बेचने वाले बन जाएं। हम भी ये जो बदन है, खुदा की हैकल है, इसे डाकुओं की खो बना लें। अपनी खुशी के लिए हम अपने ज़मीर को बेच दें। अपनी खुशी के लिए हम अपने ईमान को बेच दें। अपनी खुशी के लिए हम अपने बच्चों की तरबियत को बेच दें। अपनी खुशी के लिए हम खुदा की उस ख्वाहिश को बेच दें, उस रफ़ाकत को बेच दें जो रफ़ाकत वो हमसे रखना चाहता है, उस तवक्कुआत को बेच दें वो जो हमसे रखता है। मेरे अजीज़ों, इस हैकल का ख्याल रखें और हर चीज़ सेलिब्रेट करें, लेकिन खुदावन को कभी मत भूलें। खुदावन को हमेशा अपनी निगाह में रखें कि आपकी जो ऑफरिंग है, आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, वो उसके ज़ूर मंजूर और मकबूल ठहरें। रोमियो 12 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, अपने वतन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अपने बदन से खुदावन के जलाल को ज़ाहिर करें। ये खुदावन के जलाल के लिए आपको दिया गया है मेरे अजीज़ों, ना कि हर उस बात के लिए जिससे खुदा के जो लोग हैं वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। मेरे अजीज़ों, उन बातों से खुदा का दिल दुखता है, उसका रूह रंजीदा होता है। सो आज हमारे पास वक्त है, कल का हमें नहीं इल्म, अगले आने वाले 10 मिनट का हमें इल्म नहीं है, आने वाले लम्हात का इल्म नहीं है कि क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, क्या नहीं होगा। अभी वक्त है। इस वक्त में ये सलामती की बातें हैं, और सलामती की बातें बाइबल मुक़द्दस के अंदर दर्ज हैं। इन्हें पढ़ें, इन्हें सुनें, इन पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत